Hello everyone, good afternoon. Today we have nutritionist Yash who would be presenting Jaimin's case study. He would be taking us through his history, his current status, and then clinical background or any issues that the client had, and how he took up the client's journey to get client to achieve his goal. Over to you, Yash. Thank you so much, Manpreet. Good afternoon, everyone. Today, I'm honored to share the inspiring journey of our member, Jaimin sir. He's, I will tell you regarding his history. He's 39 years old IT professional whose story is not just about numbers and data, but about the resilience transformation and rediscovering the confidence. And despite having the low energy, relentless demands, so like his concern was when he come to me, when he approached to me, he was struggling in the way like many busy professional can relate to it. His sedentary desk job and then high stress, irregular eating habits left behind him feeling fatigue. Low on energy and lacking confidence. So this is the major factors that he used to feel. At 35.3 like body fat percent, he used to have in a start. He worried not only about its appearance but about also the toll of his current lifestyle. What's taking to his health and future? Still, Jaimin sir had hope, some hope there. Can he can change his mindset himself and for his family and reclaim his vibrant physique level for the long term fitness. I can tell you, like as you can see on the screen, there is a client profile and the history. I will tell you like the turning point. What's truly powerful about Jamin's journey is that he began with a simple approach, like courage steps, reaching out for the guidance. Despite a history of unsustainable diet failure routines, Jamin sir brought open and mind and deep sense of purpose with me. So together we set a goal according to his lifestyle. Like his lifestyle schedule was little bit hectic. So accordingly हमने सारी चीजें plan की थी in the future. So we have to work on his stress, on the emotional hurdles also are there, and तभी हम जाके इस transformation को long lasting कर सकते थे. सो आवर मेन मोटो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना था एंड वी हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू his work schedule and everything. So here are the case conductor as you can see on the screen. uh, Me, I am the nutritionist and Rumit it is his performance coach. So he follow. So first of all I will tell you the nutrition's perspective. So please पीछे वाला slide एक बार. Yeah. Jaimin sir followed a simple and sustainable nutrition plan centered around the whole foods, mindful eating, and consistent habit. His focus was on creating a balanced meal, lean protein, complex carbohydrates, healthy fats, and plenty of vegetables we add in his diet plan. So he is aware about like how to choose healthy and fresh foods and minimal processed foods ingredients whenever possible. So regarding training part, Rumit will go through to you. So please, Rumit. Hello and good afternoon, everyone. So basically, Jaimin sir, one of the most sincere means I would say consistent and too much every regular client. So basically, unka first when he enrolled, so he had multiple problems just like कि उनका high blood pressure and there were like 63 mostly majorly high blood pressure में ही उनका ये था. So after then when he started like his BP was like systolic was 163 and diastolic was 106 and not his pulse was around 90s around. So he he was on medication and currently अभी जो अभी current when he's going on so अभी उनका medication भी बंद है and he has come back to normal. अभी उनका blood pressure and all are on the normal side. So first thing is like measurements में भी बहुत काफी inches loss में भी बहुत उनका improvement है and every day consistent वो without taking a day off he used to come and even on Saturdays and Sundays he used to play badminton. वो उनका रेगुलर का एक्टिविटी था या तो बैडमिंटन नहीं तो वो ट्रैक पे जाते थे. सो देर वॉज एक्टिविटी लाइक वो कभी ऐसा ही वॉज नॉट लाइक सिटिंग अराउंड संडे सैटरडे उनका एक्टिवली रहता था.
So next thing is like अभी जो current situation, like he is in normal phase during his BP. अभी उनका normally है like 110 and 79 diastolic है and blood pressure. Even the doctor has said to stop the medicines and all. So like उनका काफी अच्छा प्रोग्रेस है अभी को लेके, एंड इवन ही वाज नॉट एबल टू इनिशियली, वेट के कारण वो पुशअप भी नहीं कर पाते थे, नॉर्मली नी पुशअप ही यूज्ड टू डू, नाउ ही इज डूइंग अ कंप्लीट पुशअप एंड अ पुल अप राइट नाउ. सो देयर आर वास्ट मोर डिफरेंसेस लाइक फर्स्ट एंड अभी. सो आपने जैसे देखा ही होगा फोटोज में एंड एवरीथिंग, लाइक ही हैज मेजर ड्रास्टिक डिफरेंस अभी के एंड द वे when he started the wild fit. So this is like Yeah. So please take 2 slides back. Yeah, so as you can see the body composition analysis here, his starting weight was 96.1 and current is 80 kgs. So this is a transformation of the 6 months. In 6 months we reduced total 16 kgs of weight. Here you can see the body fat percentage, that is 35.3 and 28.8% current state. And as you can see the difference of the BCA composition analysis on the screen. And as you can see the fat mass also 35.8 to 23. Currently the fat mass is on the 23. Our next target is to convert our goal into the body recomposition. So can you move forward please? Yeah, so challenges, please move one slide back. Yeah, so challenges you can see here. So major challenges is his difficult lifestyle. So much of poor nutrition he used to take, and I have to make sure to balance his diet according to his schedule only. And we have to manage the workout intensity. It is very important. Why? Because इनका वर्क शेड्यूल इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था कि इनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी. लाइक वी यूज टू एटलीस्ट ऐसा होता था कि उनके मसल्स 2-2 दिन तक सोर होते थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उनके एनर्जी एंड सारी चीज़ें को ट्रैक करने पड़ता था थ्रू आउट द डे. एंड अदर थिंग इज कि हमें ये बहुत कंसिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट, इन टर्म्स ऑफ डेली एक्टिविटी, तो वो बहुत हेल्पफुल वहाँ पे हमें मिला. सो इन द 4 वीक, सो फर्स्ट 4 वीक में हमने इनके बॉडी को पूरा स्टडी किया था. इनके बॉडी का मैकेनिज्म कैसा है, इनके बॉडी कैसे वर्क करती है विद द प्रॉपर न्यूट्रिशन, विद द प्रॉपर डाइट. इनके बॉडी का लाइक विद द बैलेंस, लाइक दोनों का बैलेंस होना चाहिए विद डाइट एंड वर्कआउट, तो जाके हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट 4 वीक ये सारी चीज़ें हमने नोटिस की एंड उसमें चेंजेस आने लगे थे इनके बॉडी में, एक वास्ट चेंजेस आने लगे थे. देन उसके अकॉर्डिंगली हमने इनके गोल्स पे भी वर्क किया था. सो कैन यू टेक द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे. Yeah, so as you can see the overview of nutrition here. So Jaimin sirs follow a proper structured meal pattern जिसमें breakfast, lunch, snacks and dinner. So like this इनके मील्स मैंने डिवाइड कर दिए थे इन थ्रू आउट द डे, जिसमें इनका एपेटाइट मॉडरेट था. लेकिन इनके फूड सोर्सेज को लेके ऐसा कुछ नहीं था कि ये पसंद है या वो नहीं पसंद है. ही कैन ईट एनीथिंग व्हाट आई सजेस्ट, एंड उसके वजह से बहुत हेल्पफुल था कि इनका डाइट प्लान करने में बहुत ईजी जाता था. सो मैंने उनको बोला था कि थोड़ा और एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक 30-40 मिनट्स आफ्टर विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे उनका मस्कुलर एंड्योरेंस एंड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस दोनों चीज़ों पे फोकस हो पाए, जिससे हार्ट हेल्थ भी इनकी अच्छी रहेगी, जिससे इनका हार्ट प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर दोनों चीज़ों में बहुत हेल्प मिला था हमें. सो एज सच तो वो कुछ मेडिकेशंस नहीं ले रहे थे, उनका अल्कोहल इंटेक भी ज़्यादा नहीं था इन सच केसेस. बट इन द ब्लड रिपोर्ट, जैसे हमने ब्लड टेस्ट किया था, उसमें हमें फ्यू फैक्टर्स दिखे थे कि लीवर में इन्फ्लामेशन था, देयर इज सॉर्ट ऑफ एजीबीएवेंसी इनका थोड़ा हाई था, एंड द नेक्स्ट थिंग इज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी लो था. सो सबसे पहले ऐसा चीज़ था कि हमें इनर हेल्थ पे फोकस करना था. सो अवर मेजर फैक्टर इज टू फोकस ऑन द इनर हेल्थ, तभी जाके हम बाहर से प्रोग्रेस कर सकते हैं. जब हमारी इनर हेल्थ हेल्दी रहेगी तब भी हम प्रोग्रेस देख सकते हैं. सो वी विल मेक श्योर कि हमने मेक श्योर किया कि वी विल स्टार्ट विथ वर्किंग विथ और इनर हेल्थ. कुछ डेफिशिएंसीज रहती है उस पर वर्क करेंगे, तभी हम आगे चल के एक एडवांस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं. सो कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
या सो हियर इज द इनिशियल न्यूट्रिशन चेंजेस जो हमने किए थे, लाइक डाइट तो उनका बहुत बेसिक था। फर्स्ट डाइट जो सप्लीमेंटेशन मैंने यूज़ किया थे इनके प्लान में, सबसे पहले फिश ऑयल से स्टार्ट किया था, देन एल कार्निटाइन ऑल्सो आई एडेड, अश्वगंधा, ल्यूफिक्स, जिंक एंड गोक्षुरा। सो दिस आर द सप्लीमेंट स्टैक। ये पूरी जर्नी में मैंने यूज़ किया था। डायरेक्टली ये सारे सप्लीमेंट ऐड नहीं किए थे। आई यूज टू साइकिल द सप्लीमेंट्स विथ like every month, every 2 months की इसमें I change the supplements टाइम। सो सब एल कार्निटिन तो मैंने बाद में ऐड किया था आफ्टर एक सर्टन तक पॉइंट ऐसा था कि उनका वेट स्टक हो गया था। सो एट दैट पॉइंट लाइक उनका बॉडी उतना एल कार्निटिन प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। सो आई एडेड द इनरफिक्स का एल कार्निटिन। सो वहाँ से उनको एक बूस्ट मिला था। सो इन दैट टाइम तो उनका 1 kg फैट अगेन ड्रॉप हो गया था। जब 2 BCS हमने ट्रैक किया, 2 BCS उनका वेट स्टक था। So after using the Innerfix L-carnitine, it went to 1 kg down. So then वहाँ से again उनके ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्ट मिला। So as I added zinc, why? Because इनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े लो थे। So can you move to the next slide? वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में ऐड किया है। या बैक प्लीज, एक स्लाइड बैक लेना। या सो एज यू कैन सी हियर, सो अश्वगंधा वाई? बिकॉज इनके थोड़े कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े हाई थे। सो इन दैट केस आई एडेड द अश्वगंधा टू मिनिमाइज स्ट्रेस लेवल्स, ताकि उनकी स्लीप क्वालिटी और बेटर हो पाए। स्लीप क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो एज हमें पता है कि उनके ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज होते हैं। सो उस केस में अगर हम 100% डाइट एंड 100% वर्कआउट करते हैं, अगर हमारा स्ट्रेस हाई रहता है, स्लीप क्वालिटी हम पर रहती है, तब भी हम प्रोग्रेस नहीं देख पाते हैं। तो ये केस में हमें इनके स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। एंड देन देयर इज इन्फ्लामेशन। सो आफ्टर द टेस्टिंग द लीवर फंक्शन, थोड़ा इन्फ्लामेशन हमें दिखा वहाँ पे, लाइक हिज SGOT SGPT लेवल्स लिटिल बिट हाई था। सो एज वी ऑल नो कि मिल्क थिसल एक ऐसा प्लांट है जो हेल्प करता है लीवर हेल्थ में। सो आई गॉट टू नो इन दिस जर्नी कि ल्यूफिक्स, इनरफिक्स ल्यूफिक्स एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी एडेड है। सो एडेड दिस इन हिज डाइट प्लान। तब हमने वहाँ से ट्रैक किया। आफ्टर 2 months अगेन हमने इनका ब्लड टेस्ट किया आफ्टर एडिंग द दिस ल्यूफिक्स इन इस प्लान, जिसमें मिल्क थिसल करके में सारी चीज़ें रहती है। तो वो इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो जिससे क्या है कि जब अगर लिवर में इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। सो वो भी एक चीज़ थी कि जिसके कारण इनका वेट एट 82 to 83 kg पे स्टक हुआ था। सो आफ्टर रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन, रिड्यूसिंग हिज फ्रॉम लीवर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, देन इनका स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा हेल्प वर्क किया था, तब जाके इनका वेट अगेन धीरे धीरे वापस से कम होना स्टार्ट हो गया। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या सो जिंक एंड गोक्षुरा। सो एज हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इनके थोड़े लो थे, सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो एज पर द रिसर्च एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, लाइक मेरा काम है कि इस रिसर्च करना उनकी बॉडी पे, एंड तभी हम सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो देन आई यूज जिंक एंड गोक्षुरा टू हेल्प विथ दिस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। एज वी ऑल नो कि जिंक इज एसेंशियल फॉर द टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ HPG। सो इसमें क्या है कि लाइक गोक्षुरा इज अ ट्रिबुलस प्लांट जो हेल्प करता है इसमें जब हम जिंक के साथ देते हैं। सो दिस इनका कॉम्बिनेशन मैंने बाद में ऐड किया था आफ्टर द 2 months। देन आफ्टर 3 months वी डिड द टेस्ट अगेन। सो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन में दिखा था। सो मूविंग फॉरवर्ड प्लीज कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? या सो दिस आर द लेवल करंटली। फाउंडेशन लेवल पे तो हमने सारे बेसिक पैरामीटर पे वर्क किया था, उनके स्ट्रेस, स्लीप, तभी जाके उनका परफॉर्मेंस बूस्ट होता था। देन मेटाबॉलिक फिक्स पे हमने थोड़ा बेसिक सप्लीमेंट्स रैक अकॉर्डिंग टू हिज इम्प्रूवमेंट, अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी कंपोजिशन हमने ऐड किया था। देन currently we are working on the growing stage, so this is the ongoing transformation too. We are working on the ongoing growing stage where like इनका थोड़ा डाइट पैटर्न अभी एडवांस लेवल पे, अब हम गोल भी चेंज करने वाले हैं टू द बॉडी रिकम्पोजिशन, एज इनका फैट मास एंड फैट परसेंट थोड़ा हेल्थी रेंज पे आना स्टार्ट हो गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क इन द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल। सो कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट, yeah. So here are the nutrition plan and BCA and the workout routine for the first 4 week. वहाँ पे हमने सिंपल अप्रोच स्टार्ट किया था विद द बेसिक फूड सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स ऐड करके। एंड कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? डायरेक्ट वर्कआउट अगेन, या सो वीक 9 to 12 में क्या था कि इनका वेट यहाँ पे स्टक हुआ था। सो आई स्टार्टेड विद द लो कार्ब्स डाइट जहाँ पे। सो फर्स्ट
हमने स्टार्ट किया था विद द प्रॉपर बैलेंस मील. देन आई एडेड लाइक थोड़ा बहुत कार्ब्स ऐड किया था डाइट में. देन अगेन आई स्टार्टेड विद द कार्ब साइकिलिंग. देन वहाँ पे थोड़ा उनका प्रोग्रेस और अच्छा हुआ है. इन द विद इन 2 months वी लॉस्ट 8 kgs. देन उसके बाद धीरे धीरे करके जब स्टक हुआ था, देन आई अगेन कम बैक टू द लोअर कार्ब्स डाइट, जहाँ पे मैंने थोड़ा प्रोटीन को भी लो किया था एंड सेम गोज टू कार्ब्स. सो ऐसा प्लान उनका बनाया था वेयर ही यूज टू टेक लाइक ओनली चिकन सैलेड बाउल, समटाइम्स एग वाइट्स एंड सैलेड बाउल. सो लाइक दिस इन द डिनर. So like this plan I make in this journey. So then again I जैसे ही उनका वेट अगेन कम होना स्टार्ट था, देन आई स्लोली इंक्रीज इन द कैलोरीज. जैसे से उनका वेट कम हो रहा था वैसे वैसे मैंने कैलोरीज भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था इनके डाइट में. सो दैट हेल्प्स विथ हिज एनर्जी लेवल्स और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी इन दिस केस. सो कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, so here you can see the blood reports also. So starting was 5.8 his HbA1c levels and वहाँ पे now is 5.4. so उनके मसल के स्टोरेज में थोड़ा ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए जगह बन चुकी थी ताकि उनका इंसुलिन हार्मोन अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर किया था. देन एज यू कैन सी द लिवर फंक्शन आल्सो. सो SGOT as SGPT लिटिल बिट हाई था. सो नाउ इट्स इन द नॉर्मल रेंज करंटली. कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, so here you can see the testosterone level that is 431 and now it's 532. So in almost 100 से increase हुआ है. And next हमने schedule भी किया है blood test in the next month. So hoping forward कि कितना हम इसे improve कर सकते हैं. So as you can see here कि इन्होंने like review भी दिया था. So that's इनकी case थी. So hope you all listen carefully and thank you so much.